जो आपने रशियन शिप का नाम लिया, कोई टैंकर बताया, मेरे पास इनकी इन्फॉर्मेशन कोई नहीं है, पता करेंगे फिर आपको बता सकेंगे। India does not have any information regarding a Russian oil-laden tanker reportedly diverting from China to its shores, a senior government official said on Wednesday. Rajesh Kumar Sinha, Special Secretary in the Ministry of Ports, Shipping and Waterways, said during an inter-ministerial meeting that authorities were not aware of any such vessel heading to India. The development follows a surge in India's purchases of Russian oil, with refiners stepping up imports in recent weeks amid disruptions in Middle East supplies due to the ongoing West Asia conflict. Providing an operational update, Rajesh Kumar Sinha said 25 Indian nationals were repatriated from ports and locations in the affected region over the past 24 hours. The ministry's control room handled 125 calls and 450 emails during the period, he added. He also said cargo discharge from LPG carriers Shivalik and Nanda Devi is proceeding as scheduled, while additional storage space of about 2,250 square meters has been created at Visakhapatnam port. No congestion has been reported at any port, he said. Meanwhile, India's purchases of Russian crude have surged nearly 50% in March as refiners turn to alternative sources to offset supply disruptions in the Middle East. Ship tracking data shows imports rising to about 1.5 million barrels per day from 1.04 million barrels per day in February. India, the world's third largest crude importer, meets about 88% of its oil demand through imports, with a significant share typically routed via the Strait of Hormuz. The ongoing conflict has disrupted flows through the choke point, prompting refiners to ramp up sourcing from Russia. Analysts have said earlier that the increase in Russian supplies is helping cushion the impact of reduced Middle East inflows, though risks remain, particularly for LPG. India imports a majority of its cooking gas requirements, much of which transits through the Strait of Hormuz, making supplies vulnerable to prolonged disruptions. सभी भारतीय जहाज और भारतीय नाविक इंक्लूडिंग 611 जो कि वेस्ट ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में है, 22 इंडियन फ्लैग वेसल्स पे सभी सुरक्षित हैं और कोई घटना की सूचना नहीं है। पिछले 24 घंटों में 25 भारतीय नाविकों को रिपैट्रिएट किया गया है साइन ऑफ के बाद विभिन्न पोर्ट से या विभिन्न लोकेशन से इन दैट रीजनल एरिया। कंट्रोल रूम 24/7 ऑपरेशनल है और पिछले 24 घंटों में करीब 125 टेलीफोनिक कॉल्स और करीब 450 ईमेल्स रिसीव हुई थी, जिसका जवाब दिया गया। एलपीजी कैरियर्स शिवालिक और नंदा देवी से कार्गो डिस्चार्ज जैसा कि ऑयल कंपनीज के शेड्यूल के अनुसार अभी चल रहा है। कार्गो मूवमेंट के विषय में मैंने आपको पहले जानकारी दी थी, 2 पोर्ट के विषय में बताया था। एडिशनल स्पेस में आज मैं आपको विशाखापट्टनम पोर्ट अथॉरिटी के विषय में बता रहा हूं। वहां पर करीब 2,2500 स्क्वायर मीटर का एडिशनल स्टोरेज स्पेस क्रिएट करके अवेलेबल कराया गया है। किसी भी पोर्ट पे किसी भी प्रकार की कंजेशन रिपोर्टेड नहीं है। मुंद्रा पोर्ट का एग्जांपल दे रहा हूं, वहां पे जो टोटल कंटेनर कैपेसिटी है, कंटेनर यार्ड की कैपेसिटी है, स्टोरेज की कैपेसिटी है, करीब 4 लाख टीयूज की कैपेसिटी है। करंट ऑक्यूपेंसी 25% के करीब है। तो इस कंजेशन का कोई कहीं से रिपोर्टेड नहीं है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट पे पेरिशेबल कार्गो के जो कंटेनर्स, कुछ पेरिशेबल कार्गो के कंटेनर्स का मूवमेंट हुआ है इस वजह से। इसी प्रकार मिनिस्ट्री कंटिन्यूसली मॉनिटर कर रही है सिचुएशन को, शिपिंग के मूवमेंट को, हमारे सी फेयर को, उनके फैमिली मेंबर्स को, पोर्ट के ऑपरेशंस को, जिससे कि मैरीटाइम ट्रेड कंटिन्यू करे, सुचारू रूप से चलता है।
जो आपने रशियन शिप का नाम लिया, कोई टैंकर बताया, मेरे पास इनकी इंफॉर्मेशन कोई नहीं है, पता करेंगे फिर आपको बता सकेंगे। दूसरा, जो ईस्ट ऑफ हॉर्मुज में, ईस्ट ऑफ द स्टेट ऑफ हॉर्मुज में कोई वेसल्स थे, उनका मूवमेंट हो रहा है। और स्पेसिफिकली अभी जैसा लास्ट हमने चेक किया, वहाँ पे 3 वेसल थे, और कल मैंने एक वेसल का नाम भी लिया था जो मूव करके इंडिया पहुंचा भी था। मैं आपको कल और इसके विषय में, जो ईस्ट ऑफ स्टेट ऑफ हॉर्मुज है उनके विषय में विस्तृत जानकारी दे दूंगा। कल मैंने इसके विषय में बताया था कि ये इंश्योरेंस का सब्जेक्ट है। वॉर रिस्क प्रीमियम इज एक्चुअली एडिशनल वॉर रिस्क प्रीमियम बोलते हैं, और ये जानकारी है कि अब ये इम्पोज हो रहा है। नॉर्मल कोर्स में ये बहुत कम होता है, 0.01% या 0.02%, बट जब वॉर की सिचुएशन आती है तो उसका परसेंटेज, अगर यदि ये जहाज उस वॉर रिस्क एरिया में एंटर कर रहा है या वहाँ पे वॉयज कर रहा है या किसी हाई रिस्क एरिया में एंटर कर रहा है, तो ये वॉर रिस्क प्रीमियम बढ़ जाता है। इंश्योरेंस कंपनीज करती है बेस्ड ऑन द असेसमेंट ऑफ सिक्योरिटी थ्रेट, वो सर्टेनली बढ़ा हुआ है। हमने जो इंटरेक्शन किया था परसों, तो रिक्वेस्ट भी किया था कि अगर कोई स्पेसिफिक इशू हो किसी शिपिंग लाइन को, किसी स्पेसिफिक इंश्योरेंस, हम कम्युनिकेट करेंगे, बट सम मार्केट प्ले है इसके अंदर।